Hello everyone. Today I am going to discuss about easy concept of derivatives and how to solve the questions based on derivatives. How to find the derivatives by easy concept without the chain rule. Here some formula, right? See here some formula. D by dx. If two functions are given, then how to find the derivative of product of two functions? D by dx fx into gx. At the first, we suppose the first and second term. We take fx is first term and gx is second term is equal to first term derivatives of second term and second term derivatives of first term. What is the derivative of product functions? D by dx fx and gx. If two functions are fx and gx, then how to find its derivatives? D by dx fx into gx is equal to first term derivative of second term plus second term derivative of first term. Take an examples. Y is equal to, if y is equal to x square sine 2x, find dy by dx. Here y is equal to x square sine 2x. Here is x square is algebraic functions and sine 2x is trigonometric functions. How to differentiate? Taking differentiation on both sides are it differentiating with respect to x, then differentiation of y with respect to x, dy by dx is equal to, and dy dx of x square sine 2x. Now we use the formula of product rule. X square is the first term and sine 2x is the second term. Here x square means first term derivative of second term plus second term derivative of first term, and now x square. Here sine and 2x. At the first we find the derivative of sine, after that derivative of 2x. Now derivative of sine will be cos x, then cos 2x, and derivative of 2x will be 2 plus sine 2x, and derivative of x square is 2x, because derivative of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. Therefore the derivative of x square is 2x. Now x square cos 2x plus 2x sine 2x. And second formula, d by dx fx upon gx is equal to
derivative of numerator minus numerator, derivatives of denominator upon square of denominator. Take another examples. X square by log x. If y is equal to x square by log x, then find dy by dx. Solution. Differentiating it with respect to, here y is equal to x square by log x, differentiating it with respect to x. Now differentiation of y, dy by dx is equal to denominator log x, derivative of x square d by dx x square minus derivative of numerator derivative of denominator upon square of denominator. Is equal to derivative of x square is 2x, log x into 2x minus x square into derivative of log x will be 1 by x upon square of log x. This is आंसर. एक बार और देखिए हम लोग, जब दो फंक्शंस का ऐसे दिया रहे और प्रोडक्ट में दिया रहे तो हम क्या करते हैं, पहले एक को फर्स्ट मान लेते हैं, एक को सेकेंड. फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. एक क्वेश्चन हम लोग लिए एक्स स्क्वायर साइन 2x, तो इसका निकालना है तो पहले हम एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड. तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यहाँ निकाल लिए. इसी तरह से हम लोग डिवाइड वाला ले लेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स. तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर. इस पे भी हम बेस्ड एग्जांपल लिए हैं जैसा कि आप लोग को बताए हैं. अब यहाँ देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैं. अगर आप लोग ये सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आगे वाले एक्सरसाइज समझ में आएंगे, क्योंकि सब मिक्सअप करके दिया हुआ है अलग अलग टाइप के. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए, तो इसलिए इसको सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. तो आप लोग ध्यान से मैं जितना क्वेश्चंस करवा रही हूँ उसको करिए, उसी पर बेस्ड आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिएगा. हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं. फाइंड derivatives with respect to x of the following functions. First, e to the power sine root x, and second, sine
अंडर रूट ax square plus bx plus c, and third cos cube रूट x। पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर आगे जो फार्मूला बताएं उस पर करेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, हियर e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन रूट x। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx होगा। फिर देखिए e टू द पावर साइन रूट x का जब हम लोग निकालेंगे तो आपको कल हम बताए थे कि सबसे पहले किसका करेंगे, e का, फिर किसका करेंगे, साइन का, फिर किसका करेंगे, रूट x का। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर साइन रूट x। फिर हम लोग किसका निकालेंगे, साइन का, d बाई डी एक्स साइन रूट x। आगे देखिए e टू द पावर साइन रूट x, साइन का क्या हो जाता है, कॉस रूट x, अभी भी रूट x का बचा है, तो d बाई डी एक्स रूट x। अब यहाँ देखिए e टू द पावर साइन रूट x कॉस रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट x। आपको हर बार निकालने की पावर हाफ लगाइए फिर इसको करिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए फिर से बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू लिखा है अंडर रूट x, तो कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं x टू द पावर हाफ। फिर देखिए आपको पावर वाला रूल पता है कि क्या हो जाता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब ये माइनस है तो पावर नीचे हम लिख ही सकते हैं, 1/2 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट, ऐसे आया। तो जब भी आपको अंडर रूट का डेरिवेटिव्स निकालना हो तो 1/2 और वही जितना अंडर रूट में रहेगा। अब सिमिलर तरीके से आपको मान लीजिए हम कह दिए कि y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स का निकालना है, तो आप यहाँ खुद देखिए, आपको पता है कि पहले तो हम इस अंडर रूट का करेंगे फिर हम साइन फंक्शन का करेंगे। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले अंडर रूट का करेंगे, अभी हमने क्या बताया अंडर रूट का क्या होता है, 1/2, और फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट जो नंबर से यहाँ रहेगा साइन एक्स। फिर अभी साइन एक्स का करेंगे तो हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो ऐसे ही देखिए यहाँ अंडर रूट का करना था तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए हम सॉल्व करके क्वेश्चंस को लिख देंगे, जितना सॉल्व होता है उतना करते हैं। कॉस रूट एक्स ई टू द पावर साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए, वीडियो रोक करके थोड़ा सा, उसके बाद देखिए आपका सही है कि नहीं। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए सेकेंड का सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हियर ऐसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। यहाँ देखिए पहले साइन का करेंगे फिर अंडर रूट का करेंगे फिर इसका करेंगे अंदर वाले फंक्शंस का। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर देखिए d बाई डी एक्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड अगेन cos अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। Now derivative of under root ax square plus bx plus c will be 1/2 under root ax square plus bx plus
C and derivative of ax square plus bx plus c is equal to cos under root ax square plus bx plus c into 1/2 under root ax square plus bx plus c and into derivative of x square to ax plus derivative of x b plus derivative of c. The derivative of constant number will be 0, therefore derivative of c is 0 is equal to 2ax plus b cos under root ax square plus bx plus c upon 2 under root ax square plus bx plus c. अब ऐसे ही देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थर्ड में है cos क्यूब रूट एक्स। तो पहले किसका करेंगे, cos का कि पावर का। तो देखिए यहाँ हम ध्यान रखेंगे, पहले किसका करेंगे, पावर का, फिर cos का, फिर रूट एक्स का। पहले पावर का, फिर cos का, फिर रूट एक्स का। यहाँ देखिए थर्ड y इज इक्वल टू cos क्यूब रूट एक्स डिफरेंशिएटिंग इट with respect to x, then dy by dx is equal to पावर का करेंगे तो 3 पावर है तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर रूट एक्स, एक पावर कम होता है, फिर cos का हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अभी आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक साथ मिक्सअप रहेंगे सारे क्वेश्चन। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसी को 3 स्टेप में करें फिर आगे, तो इसीलिए आप डायरेक्ट भी करना सीख जाइए। कि यहाँ पे देखिए cos का क्यूब का करेंगे तो हमें पता है 3 पावर है तो 3 cos स्क्वायर जो फंक्शन है यहाँ हो जाएगा। फिर जब हम cos का करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, फिर रूट का करेंगे x का तो 1/2 रूट x। अब हम लोग लॉग पर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। लॉग पे बेस्ड क्वेश्चंस का थोड़ा सा पहले हम लोग रूल जानते हैं, क्योंकि जब बेस डिफरेंट होता है, बेस पर वेरिएबल होता है तो तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे लॉग का थोड़ा सा रूल कि लॉग बेस ई m टू द पावर n होता है तो होता है log n log m, और फिर जब log बेस ई m/n होता है तो log m माइनस log n होता है। फिर देखिए log बेस ई m इंटू n होता है तो log m प्लस log n होता है। यहाँ बेस भी लगा दीजिएगा। अब देखिए log यहाँ a है और यहाँ b है। अगर हम लोग इसको इससे इंटरचेंज करते हैं तो ये 1/, हो जाता है log b a। देखिए b को a के प्लेस पर रिप्लेस किए हैं तो यहाँ 1/, लिखे हैं। या तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं log a b इंटू log b a इज इक्वल टू 1। एक चीज और इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर सेम हो, जो नंबर बेस पे हो वही यहाँ भी हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। फिर यहाँ देखिए अगर मान लीजिए यहाँ x हो और यहाँ भी x हो तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जैसे देखिए फाइंड डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लीजिए पहला हम फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू log 2x। अब ये देखिए log 2x यहाँ तो बेस e है नहीं, बेस e रहता था log x का डायरेक्ट हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे तो क्या होता था 1/x, लेकिन यहाँ पर 1/x नहीं होगा डायरेक्ट,
सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ y विल बी dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर log 2x, तो पहले हम लोग log x का करते हैं, तो हमें पता है डेरिवेटिव log x का होता है 1/x। फिर देखिए log 2 का जब करते हैं तो कुछ नहीं होता है, बस यहाँ log बेस e हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि 2 to the power x का तो log बेस e a हो जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, 1/x log का हो गया और log 2 का हो गया, तो log बेस e 2। एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, y इज इक्वल टू log 3x। अब आपको ओरली आ गया होगा कि इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, log का 1/x और log बेस 3 का क्या हो जाएगा, log बेस e 3। आगे समझ में। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, तीसरा मान लीजिए हमें लिख दिए log 5x। अब आपको सीधे सीधे पता चल रहा होगा कि dy बाई dx क्या आएगा, 1/x log बेस e 5। ये बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि log वाले क्वेश्चंस का एक आया भी था बोर्ड में, ये वाला क्वेश्चंस log 7x, ये क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुका है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा log 7x का। इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, बेस के जगह पर कांस्टेंट को न रख के वेरिएबल को रख देते हैं और वेरिएबल के जगह पर कांस्टेंट को रख देते हैं, तब कैसे होगा देखिए। इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिए। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए हम ले लिए y इज इक्वल टू log, यहाँ x लिख दिए और यहाँ 2 लिख दिए, अब कैसे होगा। तो अब यहाँ सबसे पहले हमको हमेशा बेस पर कांस्टेंट लाना होता है, तब हम सॉल्व करते हैं। तो सब डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको हम चेंज करेंगे, बेस को कांस्टेंट, देखिए यहाँ से इस नंबर को इससे चेंज करेंगे। और अभी हम फार्मूले में बताए हैं कि जब भी हम log a b अगर लिखा है ना, तो b को a से इंटरचेंज करते हैं तो 1/log b a ऐसे हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/log बेस 2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको पता ही है कि आप वाला रूल लगाइए, u/v वाला, u/v मतलब fx/gx वाला, तो अभी बताया है डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। या तो एक और शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि 1 है तो ये ऊपर चला ही जाएगा, तो log 2x पे पावर क्या हो जाएगा, -1। अब इसको हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू -1, पहले पावर का करते फिर अंदर का करेंगे, log 2x पर पावर -1 क्योंकि n-1 होता है, n-1 होता है, फिर इंटू dy बाई dx, फिर इसका अंदर का करेंगे log 2x। अब यहाँ देखिए -1/, ये -2 आएगा, इसको नीचे लिख ही सकते हैं, log 2x टू दी पावर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसका करने के लिए हम आपको बताए थे पहले log x का कर देंगे तो 1/x होगा, फिर बेस का करेंगे तो log बेस e क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा -1/x log बेस e 2 log बेस 2x का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा जो दोनों हम करवाए थे, एक y इज इक्वल टू log x 3 का, फिर एक क्वेश्चन कर लीजिएगा
log x 5 का। इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, dy बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा। अब थोड़ा इससे डिफरेंट टाइप का, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन 2 बार लिखा हुआ है ऐसे, ये एग्जाम में आ चुका है 2 नंबर का, log 7 फिर लिखा है log ऑफ 7x, ऐसे क्वेश्चंस लिखा है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, इजी तरीका है, जैसे अभी किए हैं हम लोग वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किसका करेंगे, log का, ठीक, log का करेंगे, फिर किसका करेंगे, बेस का करेंगे, फिर अंदर वाले का करेंगे। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स वाई का हो गया। अब log का हमें पता है 1/x होता है, तो x के प्लेस पे तो ये पूरी वैल्यू है ना, तो क्या हो जाएगा log बेस 7x। फिर से ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू log लिखा है, तो log अगर x यहाँ होता है तो हम लोग 1/x लिखते हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है log 7x, तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग 1/log 7x, ठीक। ये तो log का हो गया। फिर हम लोग किसका करेंगे, बेस का करेंगे। 1/log बेस ई 7 हो गया। फिर देखिए इनटू log 7x का करेंगे हम लोग, तो आपको पता है ही है, अभी ऊपर इतना करवाया है सॉल्व। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1/x log बेस ई 7, क्योंकि पहले log x का करेंगे फिर बेस का करेंगे। अब इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 1/log 7x